श्रुत नाड़ी परीक्षण पे आज मेरा टॉपिक है। मैडम एक मिनट। Good evening, everyone. I, Dr. Meenakshi, Ayush Medical Officer, with my co-host, Dr. Ranjan, Ayush Medical Officer, Bareilly, and Dr. Pratima, Ayush Medical Officer from Lucknow. We welcome you all on the platform of Ayurvedic Medical Officers Education Forum. So before we move on, I extend my warm welcome to our guest speaker, Dr. Bhagyashri Rajesh Gawande, Director, गावांडिस मध्य भारत आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र, बोलगांव, मध्य प्रदेश. We are very sorry we joined you late because of some network issue. Our guest speaker, Dr. Bhagyashri, was not able to join us. So now we'll continue. As we all know, today is Basant Panchami. So we are going to start our webinar. Dr. Bhagyashri, she is going to have an health talk on ancient Nadi Vigyan, Guru Shishya Parampara. Before we move on, I would like to request Dr. Ranjan for a prayer of Saraswati. Over to you, Dr. Ranjan. ओके, थैंक यू। मैडम पीछे से आवाज आपकी तरफ से आ रही है क्या? बोलो नको। आज बसंत पर्व है और माता सरस्वती का जन्म दिवस भी है, तो एक वाणी वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हम लोग आधा घंटा लेट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू के कारण से ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो आज बसंत पंचमी के पर्व पर एक वाणी वंदना कि माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, रख शीश पर आशीष के, निज हाथ प्यार दुलार दे, माँ शारदे। पंक्तियां कि माया के इस संजाल में भटका हुआ है आदमी, आधे अधूरे लक्ष्य पर अटका हुआ है आदमी, साधन है लेकिन साधना बिन काम वे आते नहीं, शायद अधर में इसलिए लटका हुआ है आदमी, जो सार्थक जीवन करे, उस ज्ञान का उपहार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। और गीत की पंक्तियां कि हम हैं नहीं कुछ भी मगर अभिमान से भरपूर है, रखते न भू पर पाँव, जाने किस नशे में चूर है, मंडूक जैसे कूप को ही जग समझ बैठे हैं हम, दो चार परिचय क्या हुए, समझे बड़े मशहूर हैं, त्योहार सा सबको लगे, उस ऐसा मृदुल व्यवहार दे, माँ शारदे,
माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शा, और गीत की अंतिम पंक्तियां कि हमको है तूने गुण दिए, संवेदना, करुणा, दया, मद मोह मत्सर लोभ जाने, मुझ में कैसे भर गया, ऐसे नहीं मिल पाएगी सुख शांति इस संसार में, करना पड़ेगा इस दिशा में अब हमें चिंतन नया, इन चिंतनों, इन चिंतनों के हेतुमा कोई सबल आधार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। Thank you so much, Dr. Ranjan. Our webinar is already delayed. So I'm going to give a brief introduction of Dr. Mrs. Bhageshwari Rajesh Gawande. She has done a BMS and she is an MD scholar, PhD in Shrut Ayurveda system from Chhindwara, Madhya Pradesh. She has excellence in Nadi science. She innovated system and named as Shrut Ayurveda system. This system established a new thought of physical, psychological, and energy role in body. Her research mainly focus on Nadi science, infertility, and neurology. She is also international speaker on Nadi science. She represents her research paper in national and international conferences. She is also speaker on Garbh Sansar and child health. She is also chartered president of Rotary Club. Her book named as A Handbook of Nadi Science got published in 2015 at Navi Mumbai. She delivered a public lecture on Nadi Science in Colombo College of Integrated Medicine, Sri Lanka in 2013. In social services, she gave free consultation with medicines in more than 100 camps and more than 20,000 patients. Her research going on for last 20 years. She works as Ayurvedic physician from last 21 years. She received various awards on national and international level, like one international award named Atal Bihari Vajpayee Award for Women Empowerment, 3 national awards, Women Empower Award by Times of India and Dr. Richards in 2018 for Public Health and Awareness, Women Empowers Award in Calcutta for Research and Innovation of Shrut Ayurveda System in 2019. Ayur Women Award by Arpan Pharma in 2018, Women Pride Award by Dainik Bhaskar Chhindwara in March 2020. This was all about Dr. Mrs. Bhageshwari Rajesh Gawande. So over to you, Dr. Bhageshwari. So I invite you a health talk on ancient Nadi Vigyan Guru Shishya Parampara. Over to you, Dr. Bhageshwari. Thank you, Dr. Meenakshi. Thank you. वेलकम टू ऑल। वे आज हम सॉरी लेट हो गए हैं थोड़ा, हमारे यहाँ आज दिन में बहुत बारिश हुई है एक्चुअली, और अभी भी मौसम पूरा ये है। मैम हम हाईवे पे रहते हैं, हमारा जो ये रिसोर्ट लाइक हॉस्पिटल है, मतलब जहाँ हम रहते हैं तो ये हाईवे पे है, तो थोड़ा हमें कभी कभी नेटवर्क वगैरह ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सॉरी फॉर दैट। लेट अस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आवाज आ रही है ना सर क्लियर? बिल्कुल श्योर श्योर। हाँ, यू आर क्लियरली ऑडिबल मैम। हाँ, कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैंने नाड़ी साइंस जो है इसके बारे में अगर हम बात करना चाहे तो सबसे पहले मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शनरी देना चाहूंगी। व्हाट इज श्रुत आयुर्वेदा सिस्टम? तो श्रुत आयुर्वेदा सिस्टम इज, हमने एक एक्चुअली पूरा जो इंफॉर्मेशन है गुरु शिष्य परंपरा वाला आयुर्वेदा का मोस्टली बहुत बड़ा पार्ट है जो रिटर्न में नहीं आ चुका है। हम
हम आयुर्वेदा को सिर्फ उतना जानते हैं जितना रिटर्न में हमने पढ़ा है, जितना हमने बुक्स में पढ़ा है। मोस्टली हमने कुछ स्क्रिप्चर्स भी पढ़े हैं, लेकिन बस हम उतने को ही आयुर्वेदा मानते हैं जो रिटर्न पार्ट है। लेकिन व्हाट इज अबाउट अनरिटर्न पार्ट का, आयुर्वेदा का एक काफी बड़ा अनरिटर्न पार्ट है जो गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा है। और उसमें दो तीन चीजें हैं जिस वजह से वो रिटर्न में नहीं आया। एक तो क्या हो गया, जैसे गुरु शिष्य परंपरा से वो चल रहा था, आगे जाके उसमें ये बाइंडिंग नहीं रहा कि ये मेडिकल फ्रेटर्निटी को ही देना है, कोई मोहवश वो किसी दूसरे को दे देता था। और इस वजह से मतलब अपने कोई बेटे को, किसी को, इस वजह से वो नॉन मेडिकल पर्सन के हाथ में जाता था, जिस वजह से वो इलेबोरेट नहीं हो पा रहा था या बुक्स में अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो हम 20 साल से इसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि जो पार्ट नॉन मेडिकल पर्सन के हाथ में है, इसको हम इलेबोरेट करके मेडिकल फ्रेटर्निटी वालों के हाथ में किस तरह से लाए, जो दैट इज ओल्ड एज रिलेवेशन, ये हम इसको कह सकते हैं कि जो पुराना पूरा नॉलेज है उसको हमने रिलेवेट किया आज के मॉडर्न एरा के हिसाब से। श्रुत आयुर्वेदा सिस्टम में अगर हम एंशियंट थोड़ा सोचते हैं तो आयुर्वेदा जो मानता है, आज एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों में एक ही डिफरेंस है। आयुर्वेदा अदृश्य और दृश्य जगत दोनों फेनामेना को मानता है, यानी जो अदृश्य फेनामेना है जो दिखाई नहीं देते हैं, और वो फेनामेना जो हमें दिखाई देते हैं। एलोपैथ है या बाकी कोई भी सिस्टम है वो सिर्फ दृश्य को मानता है, पर आयुर्वेदा दो जगत मानता है। वो बोलता है कि वर्ल्ड जो भी फेनामेनन है वो दो जगह होता है, एक अदृश्य में भी और एक दृश्य में भी। तो यही जो है, यही पार्ट जो आयुर्वेदा का है, वो बहुत सारा पार्ट जो है वो लिटररी पार्ट में अवेलेबल नहीं। तो मुझे लगता है कि जब आप मुझे थोड़ा सा सुनेंगे तो हम जो सुन चुके हैं आयुर्वेदा का उसको जस्ट थोड़ी देर के लिए हम भूल जाए और इसको एक नई तरीके से सुने। हम उसे हमारे बुक्स के नॉलेज के साथ ना जज करें फिलहाल के लिए, बाद में वो सब चीजें जुड़नी है, लेकिन आपको शुरू में ये सब चीजें अलग लगेगी क्योंकि इसका हमने जो बेस है वही डिफरेंट लिया है। तो श्रुत आयुर्वेदा सिस्टम, इसमें अगर हम परंपरा से जाते हैं तो आपने सबने सुना है, हमने बुक्स में भी पढ़ा है कि आयुर्वेदा का जो स्टार्ट माना जाता है वो शंकर को माना जाता है, महादेव जी को। शंकर, महादेव में भी शंकर यानी संकरित रूप, यानी जिन्होंने विज्ञान का आविष्कार किया, यानी जिन्होंने बहुत बड़े अनुसंधान किए, ऐसे पर्सन को शंकर माना जाता है कि जो सबसे पहले जिन्होंने अनुसंधान किए, जिन्होंने सबसे पहले रिसर्च किए। तो शंकर ने अपना जो नॉलेज था वो दिया भारद्वाज ऋषि को। ये माना जाता है कि जो सबसे पहले एंशियंट, अगर लाइफ एक्चुअली उस वक्त हम ट्रीटमेंट पार्ट करके इसको नहीं ले, उन्होंने एक जीवन जीने की कला या लाइफ साइंस करके उन्होंने दिया वो। तो शंकर जी से वो विद्या आई भारद्वाज मुनि के पास। भारद्वाज मुनि के 3 शिष्य हुए। तो उनके पहले शिष्य थे अत्रि ऋषि, और दूसरे शिष्य उनके थे पुलत्स्य ऋषि, और तीसरे शिष्य उनके थे धन्वंतरि जी। तो ये इनके 3 मुख्य शिष्य हुए। इनके शिष्य तो काफी थे, लेकिन 3 शिष्य हुए जिन्होंने नॉलेज को आगे ले जाने का ये किया। तो भारद्वाज मुनि ने एक नॉलेज ऐसा था कि जो बुक्स में लिखना या किसी को बताना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो नॉलेज का वो वाला पार्ट था जिसमें हायर जो करने वाली टेक्निक्स रहती थी वो आती थी, यानी एनर्जी लेवल पे करने वाली टेक्निक्स है, यानी फिजिकल छोड़ के इंटरनल यानी साइकोलॉजिकल और एनर्जी लेवल की जो भी टेक्निक्स आती थी वो टेक्निक्स उन्होंने अत्रि ऋषि को दी। उसके बाद हाफ एनर्जी लेवल की टेक्निक्स और हाफ फिजिकल लेवल की जो टेक्निक्स थी वो उन्होंने पुलत्स्य ऋषि को दी। और पूरा जो फिजिकल लेवल का जो पूरा टेक्निक्स थे, यानी जो डायरेक्ट पेशेंट पे करने वाली जो टेक्निक्स थी वो उन्होंने धन्वंतरि जी को दी। इसीलिए धन्वंतरि जी ने जो आयुर्वेद का पार्ट, उन्होंने धन्वंतरि जी को पूरे अधिकार दिए कि जो आयुर्वेद का पार्ट है वो रिटर्न पार्ट में ला सकते हैं। पुलत्स्य ऋषि जो थे उनसे सिद्धार्थ ट्रेडिशन बना, यानी हम साउथ में सिद्धार्थ का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले 18 सिद्धार्थ बने, यानी पुलत्स्य ऋषि से सिद्धा बने। तो सिद्धा जो रहते थे वो आधा मेडिसिनल पार्ट यूज करते थे और आधा तंत्र यूज करते थे। तंत्र यानी टेक्निक, यानी मंत्र का उपयोग करते थे वो। यानी हम अभी जो तंत्र यानी सोचते हैं तो हमको लगता है कि तंत्र यानी ये वो जो जादू टोना होता है, लेकिन तंत्र इज नॉट दैट। तंत्र ये कि टेक्निक यानी किसी भी मेडिसिन पे टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे करे, किसी भी मेडिसिन पे मंत्र का इफेक्ट कैसे करे, ये जो प्रोसीजर होता था वो उसमें आता था। तो पुलत्स्य ऋषि ने उस ट्रेडिशन को बढ़ाया जिसमें सिद्धार्थ बने और फिर सिद्धार्थ ट्रेडिशन बना। इसी तरह से धन्वंतरि जी का जो अत्रि ऋषि जी का जो विद्या थी वो उन्होंने, उनके पुत्र है हुए दत्तात्रेय, तो उनके बाद वो दत्तात्रेय जी के पास आई, और दत्तात्रेय जी के बाद वो जो विद्या थी वो उनके बाद उनके जो नवनाथ बने,
नवनाथ और उनके आगे का जो ट्रेडिशन बना उनके पास वो विद्या है। तो ये जो विद्या थी, ये विद्या हायर कमांड वाली विद्या थी, यानी डायरेक्ट एनर्जी पे काम करती थी, और इसीलिए वो विद्या को गुप्त रखा जाता था, यानी वो विद्या को किसी को कहा नहीं जाता था। और इसीलिए ये जो ट्रेडिशन चला, ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से चला, यानी इसको रिटर्न पार्ट में नहीं लाया गया ताकि इसका कोई गलत उपयोग ना करे। सिद्धा मेडिसिन में भी आधा पार्ट रिटर्न पार्ट में आया, आधा रिटर्न पार्ट में नहीं आया। इस तरह से ये ट्रेडिशन चला। तो ये ट्रेडिशन का जो पार्ट, जो भी गुरु शिष्य परंपरा का नॉलेज था, वो हमने सब तरफ से गैदर्ड किया और उसको एक लिटरेरी पार्ट में लाने की कोशिश की है, और इसीलिए ये श्रुत आयुर्वेदा सिस्टम का आविष्कार हुआ है। श्रुत आयुर्वेदा सिस्टम में 3 चीजें मेनली आती है। एक आता है श्रुत नाड़ी विज्ञान यानी डायग्नोस्टिक पैनल, दूसरा आता है श्रुत औषधि विज्ञान यानी मेडिसिन किस तरह से बनानी है, श्रुत औषधि विज्ञान, और तीसरा आता है कि श्रुत चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन देना किस तरह से है, यानी पेशेंट को बेसिकली डायग्नोस किस तरह से करना है और कैसे देना है। तो इसमें आज हम मेनली जो फोकस करने वाले हैं वो है श्रुत नाड़ी विज्ञान पे। तो अभी तक हमने जो नाड़ी सीखी है, हम आयुर्वेदा में, जब हम आयुर्वेदा के विद्यार्थी रहते हैं तब हम जो नाड़ी सीखते हैं, इसमें हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है वात पित्त कफ है, नाड़ी की कठोरता है, या हमें नाड़ी की गति देखना है, या नाड़ी उष्ण है या मंद है, गति देखना है, या उसका टेम्परेचर देखना है, यहाँ तक हमें सिखाया जाता है। लेकिन जब हम श्रुत नाड़ी विज्ञान में आते हैं तो इसमें हमें नाड़ी से हमें पेशेंट के थिंकिंग वेव्स भी जानना है, उसका एनर्जी स्टेटस जानना है। एनर्जी स्टेटस जान के हम उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जान सकते हैं। यानी एक चीज मैं बता सकती हूँ, अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को सर्दी खांसी वायरल इन्फेक्शन एक जैसा हुआ है, लेकिन हर किसी का जो उसको रिलेट करने का जो सिस्टम रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो हम क्या बोलते हैं उनको, इम्यूनिटी। तो ठीक है, इम्यूनिटी हमारी फिजिकल बॉडी पे डिपेंड रहती है, लेकिन हमारी बॉडी में 3 इम्यूनिटीज वर्क करते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी की, एक हमारा साइकोलॉजिकल विल पावर, हमारा विल पावर कैसा है वो, और एक हमारा बर्थ वाला हमें संस्कार क्या है, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कितना स्ट्रांग है, ये चीज भी इसमें इम्पैक्ट करती है। तो ये तीनों चीजों की स्टडी जो है ये श्रुत नाड़ी विज्ञान में की जाती है। तो ये श्रुत नाड़ी विज्ञान पहले किस तरह से जाना जाता था और अभी इसका हम जो नाड़ी परीक्षण जानते हैं वो हमारे पास अधूरा क्यों आ रहा है, इस पे हम एक छोटा सा सुनेंगे। जैसे आपने देखा होगा, पहले आयुर्वेदा में नाड़ी विज्ञान को नाड़ी विज्ञान नहीं कहा जाता था। अगर हम थोड़ा पुराना जाते हैं, मतलब स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं, तो आयुर्वेदा के बुक्स में हमने ये चीज नहीं पढ़ी है। पुलस्त्य ऋषि के बारे में पढ़ा है, अत्रि ऋषि के बारे में पढ़ा है, और ये पूरा आया है, लेकिन पुलस्त्य ऋषि, सिद्धार्थ का, ये सब हमने बुक्स में पढ़ा है। लेकिन ये जो नाड़ी परीक्षण है ये अभी अधूरा क्यों है हमारे बुक्स का, उसका कारण ये है कि पहले जो नाड़ी परीक्षण था वो नाड़ी ज्योतिष्य था, यानी नाड़ी और एस्ट्रोलॉजी एक साथ था, इसीलिए उसको नाड़ी ज्योतिष्य कहा जाता था। इसी तरह से रसायन तंत्र, अभी हम रस शास्त्र कहते हैं। अब हम जब पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़ाया जाता है या हमने जब बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है ये रस शास्त्र है। तो उस वक्त रस शास्त्र नहीं था, उस वक्त रस तंत्र था, यानी रसायन वाली औषधि, पर औषधियों के साथ वो औषधियों पे अलग प्रकार के टेक्निक्स का प्रयोग कीजिए कि जिस वजह से वो औषधियों का प्रभाव बढ़ेगा। यानी मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मतलब आपने एक चीज गौर की है क्या, हम एक सिंपल, हमारा बच्चा, अगर एक छोटा बेटा है, 10 साल का बच्चा है, उसको आप एक घर में माँ के हाथ की सब्जी रोटी खाएगा वो और बाहर कहीं के खाएगा, तो वो क्या बोलेगा, मम्मी तुम्हारे हाथ की अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें मम्मी के थॉट्स मिले हैं, उसका प्यार मिला है। यानी these things also effect on the food, effect on the medicine, ये उस वक्त जाना जाता था, आज हम वो चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये रसतंत्र इस तरह से था कि मेडिसिन में टेक्निकली उसके इफेक्ट्स बढ़ाने के लिए कुछ चीजें डाले जाते थे, यानी साउंड, यानी मंत्रास का उपयोग किया जाता था। मंत्र यानी मंत्र के शब्द काम नहीं करते हैं, मंत्र यानी रिपीटेशन, मंत्र यानी रिपीटेशन। अगर हम 1 में 1 डालते हैं 2 बनता है, 1 में और 1 डालते हैं 3 बनता है, यानी बढ़ रहा है, एक्चुअली काउंट बढ़ रहा है। इसी तरह मंत्रा में अगर रिपीटेड मंत्रास डाले जाते हैं तो क्या हो रहा है, मंत्रास का एनर्जी जो है, स्टैटिक एनर्जी, यानी एनर्जी स्टोर हो रही है, मंत्रास की एनर्जी मेडिसिन में स्टोर हो रही है, और फिर वो मेडिसिन जो वर्क करेगा वो नॉर्मली हमने विदाउट मंत्रास वाले मेडिसिन से बेहतर करेगा। यही उस वक्त का सिस्टम था जो था रसतंत्र और नाड़ी ज्योतिष्य। तो यही नाड़ी ज्योतिष्य में से ज्योतिष्य निकल गया, इसलिए नाड़ी विज्ञान बचा। रसतंत्र में से तंत्र निकल गया,
तंत्र नॉन मेडिकल पर्सन वाले गलत लोगों के हाथ में चला गया और तंत्र का विकृत रूप हम देखते हैं। आपने देखा है जैसे सर आप देखते हैं, आप क्या कोई आते हैं जैसे पेशेंट, किसी आपने देखा ये जैसे मिर्गी वाले जो पेशेंट रहते हैं, एपिलेप्सी वाले पेशेंट जो रहते हैं, तो आपने देखा वो पेशेंट जब आपके आते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे दवा से फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं वो बाबा के पास गया था, उसने वो धुआं बनाया, ये बनाया और मुझे अच्छा लगा। तो क्या हो रहा है, वो अपने आयुर्वेदा का धूपन ही है, सिर्फ उसको वो वहां पे यूज कर रहे हैं, लेकिन वो उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, गलत टेक्निक से। वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे आयुर्वेदा के जो धूपन द्रव्य है उनको डाल के वो उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट उनके नेजल में से उनके ब्रेन को जाके स्टिमुलेट कर रहा है और पेशेंट रिलैक्स हो रहा है, और वो एकदम से रिलैक्स हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि मुझे वहां रिलीफ मिल रहा है। यानी आयुर्वेदा का ही ये तंत्र का जो पार्ट था वो छूट के गलत हाथ में चला गया। इसी तरह से नाड़ी में से भी ज्योतिष जो था, ज्योतिष पार्ट जो था वो छूट गया, इसलिए हमारे हाथ में जो बचा वो नाड़ी विज्ञान बचा और पार्ट ही बचा, इसलिए कंप्लीट डायग्नोसिस करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो यही नाड़ी विज्ञान क्या है, इसके बारे में ही अभी हम आगे जानेंगे। तो ये जो श्रुत नाड़ी विज्ञान आ रहा है, ये नाड़ी विज्ञान, अब हमें लगता है कि आज इतने सारे डायग्नोस्टिक मेथड्स है, तो हमें नाड़ी विज्ञान क्यों जरूरी है? तो नाड़ी विज्ञान हमें इसलिए जरूरी है कि आजकल मुझे लगता है कि हम बहुत सारे ऐसे डिसीजेस के भी अक्रॉस में, आपको दिखता है मैम ये, तो मुझे लगता है कि हम नए नए डिसीज अक्रॉस आ रहे हैं, मतलब नए नए दिख रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है? नहीं सर, दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, मैं बता ही देती हूँ, शेयर करूँ, नहीं लाइट ही करूँगी। तो सर अभी हम नए नए डिसीजेस को ओवरकम हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी बहुत सारे डिसीज ऐसे हैं कि जो स्क्रिप्चर्स में, बुक्स में कहीं अवेलेबल नहीं है, अभी कोरोना ही आया है। तो हम जो डे बाय डे नए डिसीजेस को ओवरकम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव पोटेंशियल है वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके कम पड़नी है। तो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें, अभी दिख रहा है क्या सर? अभी नहीं दिखा था सर, दिख रहा है? साइड दिख रही है? अभी उस, अगर आप लिंक स्लाइड दिख रही है क्या सर? को ट्रांसफर करके फिर उस पर उससे एंटर होंगी, अच्छा तब ठीक है, मैं बता दी, ऐसे बता दीजिए। अच्छा, एक मिनट, रहो दे। ओके ठीक है मैम, मैं ऐसे इलेबोरेट कर देती हूँ, सिर्फ जो पिक्चर्स आएंगे तब आपको ये करेंगे। ये लाइट बंद कर देना सिर्फ ऊपर का बाद में। हाँ, तो क्या होता है, अभी नए नए कुछ डिसीज ऐसे आएंगे जिसके लिए इन्वेस्टिगेटिव पोटेंशियल कम पड़ेगा। दूसरा, नाड़ी से आप कोई, आपके पास टूल्स नहीं रहे तो भी पेशेंट को तुरंत डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब आपको यकीन नहीं आएगा, यहाँ के एमबीबी, मतलब जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट है नागपुर के एक दो, तो उनको मैंने इमरजेंसी वाली नाड़ी सिखाई है, तो वो उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट अगर क्रिटिकल है तो वो कहते हैं कि हमको नाड़ी से एक आलम तो आ जाता है कि ये पेशेंट क्रिटिकल है। यानी कुछ कुछ नाड़ी के जो टूल्स है वो हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं जब हमारे पास बाकी कुछ अवेलेबल नहीं रहता है, कभी इमरजेंसी में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो। दूसरा, नाड़ी में हमको बाकी सारा जो चार्जेस है पेशेंट को वो भी कम लगना है, और नाड़ी हमारा कितना भी हुआ तो एंशिएंट और सबसे पावरफुल टूल है, इसलिए मुझे लगता है कि हमने नाड़ी को फॉलो करना चाहिए। तो अब नाड़ी के, ये जो नाड़ी परीक्षण है इसके 3 प्रकार है। पहला है सैटल लेवल यानी फिजिकल लेवल, तो एक फिजिकल लेवल है पहला। फिर दूसरा है सैटल लेवल यानी सूक्ष्म लेवल, यानी पहले लेवल पे फिजिकल, यानी उसमें हम ये जानेंगे कि पेशेंट को फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम है, यानी उनको कौन सा डिसीज है, क्या है, ये जानेंगे। दूसरा आता है सैटल लेवल यानी साइकोलॉजिकल लेवल। सैटल लेवल यानी उनकी सूक्ष्म बॉडी, यानी हमारे साइकोलॉजी में जो कुछ भी चेंजेस आते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर यानी सैटल बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आने से होता है। उसके बाद तीसरा आता है वो है एनर्जी लेवल, यानी उसको बोलते हैं अल्ट्रा सैटल लेवल। अल्ट्रा सैटल लेवल के लिए हमें पेशेंट के फीलिंग्स के साथ मैच होके जाना है। तो जब हम पेशेंट के फीलिंग्स को मैच होके उसके साथ जाते हैं तब हम अल्ट्रा सैटल लेवल को कैच करते हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं तो नाड़ी यानी कुछ भी नहीं, तो स्पंदन के थ्रू तो हमें जाना है, लेकिन इट स्पीक्स विथ अस। ये स्पंदन हमसे बात करते हैं जब इनको हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें हमको समझना कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है। मुझे लगता है जब हम नाड़ी बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो जो मिले उसकी पकड़ो, हाथ की नाड़ी, किसी की भी हाथ की नाड़ी पकड़ो और चेक करो, क्योंकि हमें पहले तो स्पंदन को बात करना है उससे, क्योंकि इट स्पीक्स विथ यू।
तो हमें वो बात करना सीखना आना पड़ेगा, तभी हम नाड़ी में आगे जा सकते हैं। तो मेनली इसके 3 लेवल है, एक फिजिकल लेवल, फिर सैटल, फिर अल्ट्रा सैटल। तो ये तीनों लेवल में हम एक एक हमारी मास्टरी कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। इजी है अगर हम फीलिंग्स समझना सीख गए। जब एक चीज मैं बताती हूँ, जैसे देखिए पानी में जाना है तो हमें पानी जैसा बनना पड़ता है। अगर किसी को तैरना है पानी में तो वो क्या करेगा, खुद की बॉडी जैसा बनाएगा। इसी तरह से जब हमको नाड़ी परीक्षण करना है तो हमके फीलिंग्स को उस वक्त उतना मैनर करना पड़ता है, तो वो फीलिंग्स को आप कैच कर सकते हो और उनको सुन सकते हो। तो इस तरह से नाड़ी के 3 लेवल आते हैं। अब नाड़ी का प्रोटोकॉल, यानी नाड़ी परीक्षण करते समय हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले घी का दिया लगाना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि घी का दिया जो रहता है वो जो एरिया रहता है वहां का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, और वो वहां का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की वजह से वहां का जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव बनता है। इसलिए कहा जाता है कि जहां आप नाड़ी परीक्षण कर रहे हैं वहां पे घी का दिया, जहां पे भी आपके भगवान जी वहां लगाइए। दूसरा प्रोटोकॉल है कि नाड़ी एम्प्टी स्टमक करना है, यानी खाली पेट ही करना है। सुबह का समय इसलिए नाड़ी के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन आज के परिवेश में जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं तो बहुत से हमारे पेशेंट्स है, जरूरी नहीं कि हम उनको सुबह ही मिल पाए, तो इस वक्त उनको एटलीस्ट 3 घंटे के लिए एम्प्टी स्टमक रखना है, क्योंकि 3 घंटे में हम जो खा चुके हैं वो खाने का इफेक्ट निकल जाता है। इसलिए नाड़ी एम्प्टी स्टमक करना है, यानी खाली पेट करना है। फिर जो लेडीज रहते हैं उनके लेफ्ट हैंड का करना है, यानी बाएं हाथ का, और जो जेंट्स लोग हैं उनके दाहिने हाथ का करना है, यानी राइट हैंड का। तो ये हमको नाड़ी परीक्षण करना है कि मेल पेशेंट रहेंगे तो राइट हैंड, फीमेल पेशेंट रहेंगे तो उनके लेफ्ट हैंड का नाड़ी परीक्षण करना है। लगता है टेक्निकल इशू आ गया है। अच्छे कामों में हमेशा व्यवधान आता है, और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा लेक्चर चल रहा था डॉक्टर भाग्यश्री गवांडे जी का नाड़ी साइंस पर। और जिस स्थान पर वो सौसर में अपने सेंटर चलाती हैं, वहाँ थोड़ा-सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इस कारण से वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। हम सब लोग जानते हैं नाड़ी जो है हमारी एंशिएंट साइंस है, और पहले आज के समय में जितना जो डेवलप्ड पैथोलॉजी है, वो उस समय नहीं हुआ करती थी। आज तो खैर पैथोलॉजी बड़ा सशक्त है, बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज से 5000 वर्ष पहले तो हमारे ऋषि मुनि ने नाड़ी साइंस, नाड़ी विज्ञान को डेवलप किया था, और उसके माध्यम से वो वात पित्त कफ की गति के अनुसार, उनके प्रभाव के अनुसार, उनके उनके चलन के अनुसार उसको रोग को डायग्नोस करते थे, और बड़ा सटीक डायग्नोसिस हुआ करती थी। लेकिन आजकल ये जो साइंस है धीरे-धीरे कम होती गई। जैसे उन मैडम बता रही थी कि श्रुति के आधार पर इसका विकास हुआ। श्रुति मतलब गुरु शिष्य परंपरा, गुरु अपने शिष्यों को ये विज्ञान सिखाता था, और शिष्य उसको आत्मसात कर लेता था, उसको जज्ब कर लेता था, और फिर उसको अपने अपने जीवन में उसको उसका धारण करता था, उसकी प्रैक्टिस करता था। उसके बाद जब वो गुरु की पदवी प्राप्त करता था, तो वो अपने शिष्यों को अपने अपने जो लोग जिज्ञासु लोग हुआ करते थे, उनको ये साइंस सिखाता था। लेकिन जैसे-जैसे तथाकथित विकास होता गया देश का और पूरे विश्व का, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी हो गया, और उसमें साधना की कमी होती चली गई, जिस कारण से वो तकनीकी का सहारा लेने लगा। और इस तरीके की, क्योंकि ये जो साइंस है, आयुर्वेद है, ये सब साधना का खेल है। मैडम सुन पा रहे हैं? जी जी सॉरी मैडम। फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ। पता नहीं, पर मेरे ये लेक्चर में सॉरी है।
तो मैम हम यहाँ पे टॉपिक पे आ गए थे। हाँ, ओके। तो नाड़ी परीक्षण किस तरह से करना चाहिए उसका हमने प्रोटोकॉल देखा। अब प्रोटोकॉल के बाद हमको ये देखना है कि हमें नाड़ी परीक्षण जो करना है वो नाड़ी परीक्षण में सबसे पहले क्या देखना है, मतलब सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे। तो क्या होता है, जब हमें किसी रुग्ण की विकृति देखनी है तो हम विकृति के पहले क्या करेंगे, विकृति के पहले हम प्रकृति देखेंगे। विकृति के पहले हम क्या देखेंगे, प्रकृति, यानी उसकी नेचुरल प्रकृति क्या है, वो हमारे आयुर्वेदा में हम सीख चुके हैं। यानी रुग्ण की हम प्रकृति देखते हैं वात पित्त कफ में से। तो ये मुझे लगता है कि मुझे हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सब आयुर्वेदा के ही डॉक्टर्स हैं। तो सर्वप्रथम हमें उसकी प्रकृति तो रूल आउट कर लेनी है, नो डाउट, कि प्रकृति कैसी है। और प्रकृति तो हमें इसी तरह से देखना है जैसा हम यहाँ चेक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें क्या देखना है, दूसरा आता है कि डाइटरी चेंजेस, नाड़ी में डाइटरी चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो उस पर हमें ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, कभी कभी कोई रुग्ण हमारे पास ऐसा आएगा कि हमें उस इमरजेंसी में चेक भी करना है और वो खाना भी खा चुका है। तो जहां तक हम उसको पूछ ले कि उसने मैक्सिमम कौन से इसका खाना ज्यादा खाया है और उसमें डाइटरी चेंजेस क्या क्या आ चुके हैं, तो वो हमने उसमें देख लेने चाहिए। तो जैसे डाइटरी चेंजेस में यही है कि पेशेंट अगर स्पाइसी खाना खा चुका है, बहुत ज्यादा स्पाइसी, तीखा वगैरह, तो उस वजह से हमें उसकी नाड़ी जो रहेगी वो नाड़ी उसकी थोड़ी सी द्रुत लगेगी, फास्ट लगेगी और सूक्ष्म लगेगी। और अगर पेशेंट ने जैसे हेवी कुछ खाया है, जैसे पोटैटोज है या फ्राइड आइटम वगैरह कुछ खाए हैं, तो उस वक्त हमें उनकी नाड़ी जो है वो गुरु लगेगी, हेवी लगेगी। तो ये डाइटरी चेंजेस है। उसके बाद उन्होंने अगर मीठा कुछ खाया है तो मीठे में हेवी तो लगेगी, लेकिन साथ में शीत लगेगी, यानी नाड़ी ठंडी लगेगी। और उन्होंने अगर पोटैटोज वगैरह हेवी वाला खाया है, तला हुआ खाया है, तो उसमें भी हेवी लगेगी लेकिन उष्ण लगेगी। दो में ये फर्क है कि जब वो स्वीट ज्यादा खा चुके हैं तो गुरु और शीत, और इधर अगर है तो हमको गुरु और उसमें उष्ण लगेगी। तो ये डाइटरी चेंजेस है। अगर हमारे पास फूड खा के कोई पेशेंट आता है तो हमको ये चेंजेस उनमें से माइनस करने हैं। उसके बाद दूसरा और एक है कि हमें कभी कुछ नाड़ी में कुछ चेंजेस, कभी कभी नाड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है। अगर पेशेंट की अवस्था, उस वक्त उसकी अवस्था कुछ अलग हो तो हमें वो अवस्था को भी जान लेना है कि हमारे पास रुग्ण आके बैठा है, हम रुग्णों को भी चेक करने वाले जाहिर है और कोई हेल्दी पर्सन को भी करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो रिलैक्स है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर वो भूखा है, बहुत ज्यादा ही भूखा है, यानी हम मॉर्निंग में बुला रहे हैं या 3 आवर भूखा, 3 घंटा भूखा रख रहे हैं, अलग बात है। लेकिन अगर हमारे पास आने वाला पेशेंट अगर 8-10 घंटे से भूखा है तो उसमें नाड़ी में चेंजेस ज्यादा आएंगे। उसके बाद अगर पेशेंट एंगर में है, तो एंशियस है, तो उनकी नींद नहीं हो रही है, तो सेक्स डिजायर में है, तो ये चीजें होती है जो नाड़ी में चेंजेस लाती है। ये हम आयुर्वेदा में वैसे सीख चुके हैं थोड़ी चीजें, फिर भी मैंने जस्ट थोड़ा सा एलेबोरेट कर लिया कि इसका भी हमें ध्यान रखना है कि उस वक्त उसकी मन की अवस्था कैसी है। नहीं तो ये चीजें हमारे डायग्नोसिस को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकते हैं और हमारा डायग्नोसिस हल्का सा गलत हो सकता है। इसलिए उनसे बातों बातों में उनके मन की अवस्था हमने पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है 20% नाड़ी में बॉडी लैंग्वेज भी प्ले करती है, यानी हमें उनके एक बॉडी लैंग्वेज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज भी उसमें हमें कुछ चीजें बता देती है कि पेशेंट की अवस्था, मन की अवस्था क्या है और वो किस तरह से है, उसका मनोबल कैसा है। तो ये इफेक्ट्स भी हमें एक्सक्लूड कर लेने हैं और उसके बाद हमें नाड़ी परीक्षण करना है। तो अब नाड़ी परीक्षण में हमें क्या करना है, तो नाड़ी परीक्षण में जब हम ये नाड़ी परीक्षण करते हैं तो इसमें एक रूट कॉज वाला पार्ट आता है जो हम एक डालते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो रूट कॉज यानी क्या, तो किसी भी बीमारी का एक मूल कारण क्या है वो पता करना। यानी देखिए, बीमारियां तो बहुत सारी है, लाखों है, लेकिन आयुर्वेदा का यही सुंदरता है कि आयुर्वेदा क्या कहता है, बाकी कोई भी पैथी आप देखिए वो बाहर से अंदर जाती है, वो नहीं, वो सिम्टम्स पे फोकस करती है कि ये पेशेंट आ रहा है, वो मुंह से क्या सिम्टम्स बता रहा है, थोड़ा सा हमको दर्शन में दिखाई क्या दे रहा है, वो थोड़ा सा ऑस्कल्टेशन करेंगे और डायग्नोस करेंगे। लेकिन आयुर्वेदा क्या कहता है, आयुर्वेदा कहता है कि उसके मूल को जानो, यानी किसी भी डिसीज का मूल क्या है। तो जनरली 5-6 चीजें होती है कि जो किसी भी इसके मूल में रहती है, किसी भी बीमारी के, एवरी बीमारी, मतलब कोई भी डिसीज हो उसके मूल में वो कारण रहते हैं। पहला रहता है कि डाइटरी हैबिट्स, अगर गलत डाइटरी हैबिट्स है तो। दूसरा, अगर गलत तरीके से उसके मतलब उसका रूटीन है, तो जैसे उसका वर्किंग हैबिट्स जो है वो भी अगर उनके नींद वगैरह जो दिनचर्या के हिसाब से नहीं है तो। दूसरा, डाइटरी हैबिट्स अगर गलत है तो। ये दो तो मेन रूट कॉज है। तीसरा है कि जैसे इसमें एक पार्ट आता है फिर बाह्य बाधा और ग्रह बाधा, ये 2 शब्द इसमें आते हैं। मुझे लगता है हम, सर मैं बात कर सकती हूँ ना, थोड़ा टाइम लूं? यस यस यस।
हाँ you can Continue, do, please ma'am, continue. continue. हाँ, क्योंकि मैम हाफ आवर लगेगा अगर मुझे कंप्लीट बताना है तो थोड़ा सा। No तो problem, no बाह्य problem. बाधा और ग्रह बाधा, सर मैं बोलती हूँ, जैसे हमने सुना है बाह्य बाधा और ग्रह बाधा, तो हमारे मन में वो पूरा आ जाता है कि ये तंत्र मंत्र वाले जो शब्द यूज करते हैं, दैट्स नॉट लाइक दैट। बाह्य बाधा और ग्रह बाधा, इसका संबंध आता है हमारे ऑरा से, यानी थिंकिंग वेव्स, पेशेंट के थिंकिंग वेव्स बाहर के थॉट्स के इफेक्ट से किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं, उसे उन्होंने उस वक्त बाह्य बाधा शब्द दिया था। यानी बाह्य बाधा यानी जादू टोना नहीं, बाह्य बाधा यानी उसका जो थिंकिंग का एक सर्कल बना है वो डिस्टर्ब हो चुका है, वो निगेटिव थिंकिंग में चला गया है। तो ये हमारा जो निगेटिव थिंकिंग है वो आगे जाके डिसीज में रूपांतरित होता है, आयुर्वेदा ये कहता है। इसलिए ये भी, इसको भी हमने एक रूट कॉज मानना चाहिए। और इसके बाद फिर रहता है, इन्होंने बोला है, एक बोला है पूर्व जन्म, यानी आपने आयुर्वेदा में एक शब्द हमने सुना है ना, पूर्व जन्म के दोष की वजह से कुछ बीमारियां होती है। उनका कहना है, आपने सुना होगा कि कुछ डिसीज जो है वो बोलते हैं कि नहीं पहले के जन्म से आए। तो इसके लिए भी हमने एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर में माता पिता से हमें स्पर्म्स और ओवम तो मिल रहे हैं। इसीलिए ये श्रुत नाड़ी विज्ञान का हम जब बेसिक स्टडी जो शुरू करते हैं तो इसमें श्रुत एनाटॉमी आता है सर, इसमें 7 शरीर आते हैं मैम, है ना, 7 शरीर का संबंध आता है। यानी हम माता पिता के स्पर्म और ओवम से बने, लेकिन हमारे साथ कुछ तो भी बैक वाली मेमोरीज आई है, यानी अदृश्य जगत से कुछ तो भी हमारे साथ आया है, जो फिर से हम जाएंगे तब अदृश्य जगत में जाएगा। हम कहीं से तो भी आए हैं, इसका मतलब कहीं तो भी जाने वाले हैं, और कहीं तो भी जाने वाले हैं, तो जहां जाने वाले वहां भी कुछ ना कुछ है, क्योंकि वहां से फिर से आते हैं। तो इसीलिए ये जो अदृश्य है, तो वहां पे कुछ ना कुछ मेमोरीज है जो हमारे साथ आए हैं, तो वो मेमोरीज की वजह से कुछ डिसीज हमें ओवरकम होते हैं। तो ये आयुर्वेदा इसको मानता है, बाकी इसको नहीं मानते, यही आयुर्वेदा की सुंदरता है। तो ये जो है ये रूट कॉज है। इसके बाद हमने नाड़ी परीक्षण पे आते हैं कि हमने नाड़ी परीक्षण किस तरह से करना है। तो प्रकृति तो हमको पहले जान लेना है, प्रकृति हमें डायग्नोसिस के लिए नहीं जानना है, प्रकृति हमें उनके ट्रीटमेंट के लिए जानना है, क्योंकि प्रकृति का उपयोग हमें कहाँ होता है, जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्योंकि जो प्रकृति का पर्सन है उसको अगर उसी प्रकृति का डिसीज हुआ है तो हम उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं, दूसरे प्रकृति का हुआ है तो हमें ठीक करने में कठिनाई जाएगी। तो ये हमें ट्रीटमेंट पार्ट के लिए उनकी प्रकृति जान लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद पहला जो नाड़ी परीक्षण आता है वो है जनरल नाड़ी परीक्षण, यानी जनरल एग्जामिनेशन। तो ये जनरल एग्जामिनेशन में क्या आता है, तो जनरल एग्जामिनेशन में जैसे ये हाथ है, तो हम जब नाड़ी, आपको ये तो दिखाई देगा ना, मैं इसी पे आपको करके बता Yes, yes. तो ये जो नाड़ी परीक्षण आता है श्रुत नाड़ी विज्ञान, कौस्तुभ 1 मिनट होगा, हाथ देश, मैं एक हाथ पे आपको करके बताऊंगी तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, हम प्रैक्टिकली कर लेंगे सब। तो जैसे ये हाथ है ना, तो हमने इस तरह से हाथ की उंगलियां यहाँ रखी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारी 3 उंगलियां जब हम रखते हैं तो ये तीनों उंगलियां एक लेवल पे आ जानी चाहिए यहाँ से। यानी हम क्या करते हैं, कभी कभी एक उंगली ऐसे नीचे रहेगी, एक ऊपर रहेगी, ये परफेक्ट नाड़ी एग्जामिनेशन नहीं है। जब हम नाड़ी एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ से एक तो हमको एक अंगुल छोड़ देना है, ये एक अंगुल डिस्टेंस छोड़ देना है मूल बंद से, ये जो यहाँ पे ये है मतलब अंगुष्ठ मूल से, यहाँ से हमको एक अंगुल मतलब एक उंगली छोड़ देना है, हाँ ये एक उंगली जगह छोड़ देनी है। उसके बाद हमें यहाँ से 3 अंगुल रखना है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों अंगुल एक जैसे रहने चाहिए। दूसरा, हमें सिर्फ इतना ही प्रेस करना है कि स्किन हल्की से दबे, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। नाड़ी जब हम चेक कर रहे हैं तो सिर्फ ये रखा और बस हल्का सा प्रेस किया, ठीक है। दूसरी चीज, ये नाड़ी परीक्षण में मैंने बोला था एनर्जी का भी रोल आता है करके, ये नाड़ी परीक्षण के लिए रुकने के दोनों हाथों को हमारे दोनों हाथों से टच करना है, क्योंकि इसका संबंध भी आगे आता है। रुकना जो है उसमें ऑलरेडी निगेटिव एनर्जी है, अगर हम रुग्ण को एक हाथ से करते हैं तो उसकी निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर जाती है। अगर हम एनर्जी लेवल पे उनसे, थॉट लेवल से उनसे जुड़ रहे हैं तो वही लेवल से निगेटिव आना जाना शुरू हो जाएगा। तो ये इसीलिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों को पकड़ना, दोनों हाथ, दूसरा हाथ हम यहाँ रखेंगे, एक हाथ यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे हमको ये 3 उंगली इस तरह से रखना है और इसको हल्का प्रेस करना है। उसके बाद ये उंगली है, ये पहली उंगली, तो ये उंगली जो है ये उंगली रहती है पित्त की। तो ये उंगली को जब हम प्रेस करेंगे, अगर इधर पल्सेशन बढ़ेगा तो समझना है कि रुग्ण का पित्त बढ़ा है, ठीक है। अगर हम ये उंगली प्रेस करेंगे, ये पहला वाला अंगूठा है ना, अंगूठा अगर हम प्रेस कर रहे हैं और इधर पल्सेशन बढ़ रहा है तो ये उंगली पित्त की रहेगी, यानी पल्सेशन बढ़ेगा तो पित्त बढ़ा है, पल्सेशन घटेगा तो पित्त घटा है, ठीक है। उसके बाद ये उंगली है, ये वात की रहेगी, सेकंड, पित्त वात कफ,
यानी ये उंगली वात की, पल्सेशन बढ़ा है तो वात बढ़ा है, यहाँ पल्सेशन यहाँ देखेंगे, लेकिन प्रेस यहाँ करेंगे, यहाँ हल्का प्रेस करके रख देंगे, लेकिन अच्छा प्रेस यहाँ करेंगे, ठीक है। पर हमें प्रेस करते वक्त वही ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा प्रेस करेंगे सर या मैडम, हम अगर बहुत ज्यादा प्रेस करेंगे तो हमें हमारा पल्सेशन सुनाई देगा और हमारा डायग्नोसिस गलत होगा। इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये हमको इतना प्रेस किया, फिर ये पित्त की उंगली हो गई, ये वात की हो गई, इसको प्रेस करेंगे, पल्सेशन बढ़ेगा तो वात बढ़ गया, पल्सेशन घटेगा, वात घट गया। फिर ये कफ की उंगली हो गई, फटा है, यानी हमें ये डायग्नोस करना है कि रुग्ण में कौन से दोष बढ़े। अब इसके बाद ये उंगली आती है, तो ये उंगली जो है ये रुग्ण के थिंकिंग वेव्स यानी उसके साइकोलॉजिकल स्टेटस को दिखाती है। यानी अगर रुग्ण एंशियस है यानी एंजाइटी वाला रुग्ण है तो यहाँ का पल्सेशन बढ़ेगा, ठीक है। और अगर रुग्ण डिप्रेशन वाला है यानी मतलब उसके थिंकिंग में सप्रेस हो चुके हैं, अगर वो उदासीनता वाला पेशेंट है या डिप्रेशन वाला है तो यहाँ पल्सेशन घटेगा, और अगर वो एंजाइटी वाला पेशेंट है तो पल्सेशन बढ़ेगा। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये है पेशेंट का एनर्जी स्टेटस, यानी उनका जेनेटिक स्टेटस कैसा है, यानी कौन से डिसीज में उसका इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये इस पर से इसको उनका एनर्जी स्टेटस पता चलता है कि इनके अंदर एनर्जी रुग्ण के अंदर किस तरह से है। तो ये उंगली को जब हम प्रेस करते हैं तो अगर हमको इस वक्त हमको एनर्जी कभी भी ज्यादा या कम नहीं कहते हैं, इसमें हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसको प्रेस करने पर इनका पल्सेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसका एनर्जी स्टेटस अच्छा है, लेकिन अगर इसके बाद पल्सेशन घट रहा है तो समझना है कि पेशेंट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उनके जो भी डिसीज है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और पेशेंट के अंदर का एनर्जी सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये इससे एनर्जी स्टेटस पता करते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद ये हाथ का हथेली का ये सेंटर आता है, ये हथेली का सेंटर, तो हमको यहाँ का पल्सेशन देखना है। मैंने अभी बोला था कि पूर्व संस्कार जो हम कहते हैं, तो पूर्व संस्कार जो हमारे आयुर्वेद में इसलिए कहे गए, आपने सुना है क्या, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आमवात है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को तो अस्थिक्षयजन्य माना जाता है, लेकिन आमवात के इसमें एक शब्द आता है कि पूर्व संस्कारों से आमवात होता है। वैसे ही ल्यूकोडर्मा में आता है कि पूर्व संस्कार से ल्यूकोडर्मा होता है। ऐसे कोई चीजों में एक हमें एक सुनाई देता है। तो पूर्व संस्कार यानी जेनेटिक मेमोरी में अगर इम्प्योरिटीज कितनी ज्यादा आई है वो हमें पता करना है, तो वो यहाँ से पता चलती है। अगर हमने यहाँ प्रेस कर दिया और अगर हमको किसी रुग्ण में बहुत ज्यादा पल्सेशन आ रहे हैं तो समझना है कि ये बार बार बीमार पड़ेगा और इसको ठीक होने में टाइम लगेगा किसी भी बीमारी में, क्योंकि उसने पूर्व में उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसके साथ में जेनेटिक मेमोरीज, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है, मेमोरीज आती है हमारे साथ। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। हमने एक कैमरा लिया, वो कैमरा में हमने 10 पिक्चर निकाले, ठीक है। फिर हमने वो कैमरे में का मेमोरी कार्ड निकाल लिया, वो मेमोरी कार्ड हमने दूसरे कैमरा में डाला, हमने फिर से 10 पिक्चर निकाले। फिर हमने तीसरा कैमरा लिया, उसमें फिर से वो मेमोरी कार्ड डाला, फिर से 10 पिक्चर निकाले। तो पहले दोनों कैमरा तो हमने डिस्कार्ड कर दिए, तोड़ दिए, पर फिर भी वो लास्ट वाले कैमरा में तीनों कैमरा के पिक्चर्स है। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी के रूप में थे। यानी मेमोरीज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। जब सादी कैमरा की मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो हमारे भीतर की मेमोरी कहाँ डिस्ट्रॉय होगी। यानी मेमोरी जो है, मेमोरी कभी भी ट्रेवल करती है, यानी वही मेमोरीज होती है जो हमारे साथ आती है और उसमें की ही फिर कुछ मेमोरी हम मिटा देते हैं, कुछ मेमोरी हम नहीं बनाते हैं, वो हमारे साथ जाती है। तो इसीलिए एनर्जी स्टेटस जो है वो हमको पेशेंट का जानना बहुत जरूरी है कि इनके साथ बैक वाली अच्छी मेमोरीज आई है कि बुरी मेमोरी। तो ये हो गया हमारा एक ओवरऑल डायग्नोसिस, यानी हमने ओवरऑल पेशेंट को डायग्नोस कर लिया। अब इसके बाद हमको आता है, ये इसमें बहुत सारे टूल है, यानी आप जनरल डायग्नोसिस करके, ये जो जनरल डायग्नोसिस है आप इतना ही करके रुग्ण का ट्रीटमेंट कर सकते हो, कौन सा दोष खराब है, क्या है, जेनेटिक वाला प्रॉब्लम है कि ये है पता करके। लेकिन इसके बाद फिर सेकंड आता है कि अगर आपको 5 एलिमेंट्स के अनुसार करना है तो, यानी पंचमहाभूतों का इम्बैलेंस पता करना है तो, यानी ये रुग्ण, अगर आप ये चाहते हो कि हम ये रुग्ण का यही ट्रीटमेंट 5 एलिमेंट्स के हिसाब से करें तो आप 5 एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन भी नाड़ी से पता कर सकते हैं। तो 5 एलिमेंट्स के लिए भी वैसा ही जैसा मैंने हाथ रखा था वैसा रखना है, ठीक है। समझ रहा है ना सबको? थोड़ा लेंदी तो नहीं हो रहा? समझ रहा है? बहुत अच्छी तरीके से। तो 5 एलिमेंट्स के ठीक है, थैंक यू। तो 5 एलिमेंट्स के लिए भी हमें क्या करना है, 5 एलिमेंट्स के लिए भी सेम है। यहाँ से हमको सिर्फ जाना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
और देखिए इतनी सुंदरता है इसमें, मतलब जो एंशियंट नॉलेज था वो ऐसा लगता है कि हमारा बुक्स का नॉलेज इनके सामने 1% भी नहीं है। यानी उन्होंने उस वक्त इतनी सुंदरता कैसे करके रखी होंगी। ये नॉलेज एक्चुअली मुझे मेरे दादाजी नाड़ी ज्योतिष्य थे, वो नहीं है तो ये उन्हीं से आया वाला नॉलेज है, और उनके पास उनके बहुत सारे गुरु से ही आया था। मेरे दादाजी तक वो नॉलेज उनको वो, और इन लोगों को जब वो नॉलेज देते थे उनके गुरु, तो उनको ये कह के देते थे कि आपको ये नॉलेज किसी को देना नहीं है, यानी गुप्त रखना है। ये उनकी पहली ये रहती थी, इसीलिए नॉलेज किसी को बताया नहीं जाता था। पर मेरे दादाजी ने मुझे जब दिया तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको मैं ये नहीं बोलता कि आप गुप्त रखो, यानी इसका इस तरह से सिस्टम चलता है। तो वो इसलिए लिखने में भी आया, मैंने उसको इसलिए लिखा ताकि ये मतलब एक उसको एक साइंटिफिक एक विजन मिले और कोई साइंटिफिक लोग उसको और आगे ले जाए। तो आप 5 एलिमेंट्स के हिसाब से भी अगर कोई ट्रीटमेंट करना चाहता है तो हम 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस पता कर सकते हैं, और 5 एलिमेंट्स के अनुसार डिसीजेस होते हैं, आपको पता होगा। जैसे पृथ्वी तत्व है, तो अगर हम यहाँ से पता करेंगे तो ये पृथ्वी तत्व की उंगली है, तो जैसे यहाँ हाथ रखेंगे सेम पहले जैसा ही, जैसे मैंने अभी बताया, एक हाथ आपका यहाँ रहेगा, दूसरे हाथ से आप ये उंगलियां प्रेस करेंगे, है ना। फिर से उसको बुलाओ क्या कि आपको समझ में आ जाएगा वो, मतलब कौस्तुभ 1 मिनट, रोशन, तो वो पहले जैसा ही हाथ रखना है, लेकिन 1 मिनट, मतलब कभी भी आप ये चीज का ध्यान रखिए, लेकिन ये आपको यह हाथ ऐसा ही रखना है। इसमें एक और माइनर थिंग मैं आपको बता रही हूँ, आपने देखा होगा मेरी जो उंगली है ये यहाँ टच नहीं हो रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरी उंगली जो है, मेरी उंगली और ये इसके बीच में भी एक इतना खाली रखना है। ये इसलिए कि हर किसी का ऑरा होता है, और हर किसी के ऑरा में उसका थॉट होता है, थॉट प्रोसेस हमारे ऑरा में रहता है, और हमारा ऑरा हमारे बॉडी से 1 अंगुल दूर होता है, एनर्जी चक्र है हमारे बॉडी का। तो ये किसी भी रुग्ण का अगर हम यहाँ टच कर देते तो उसका जो एनर्जी वाले थॉट रहेंगे वो हमारे अंदर आएंगे, इसलिए हमको वो ऑरा के बाहर हमारे, और ये हमारी एनर्जी की है, मैंने पहले ही बताया कि ये उंगली जो है वो एनर्जी की है चेक करते समय, इसलिए हमें ये उंगली जो है ये कभी भी रुग्ण के बॉडी को टच नहीं करना है जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं तो, और ये इसीलिए इस तरह से रहती है। फिर हम यहाँ पे फिर से ये पृथ्वी तत्व का इम्बैलेंस इसी तरह से पता करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे तो बढ़ेगा अगर पल्सेशन, तो पृथ्वी तत्व बढ़ा है यानी गुरुता बढ़ी है, और अगर पल्सेशन घटेगा तो पृथ्वी तत्व घटा है। फिर यहाँ पे आएगा पृथ्वी जल तत्व, अगर पल्सेशन बढ़ा, जल तत्व बढ़ा है, यानी हमको जल तत्व को घटाना है। अब जल तत्व को घटाएंगे कैसे, 2 रास्ते हैं, अग्नि तत्व बढ़ा दो जल सूख जाएगा, ठीक है, या फिर पृथ्वी तत्व बढ़ा दो जल घना हो जाएगा। देखिए इतना सुंदर है, मतलब हमको सिर्फ कुछ नहीं, मतलब एक सामान्य भाषा में अगर हम इसको समझे तो बहुत आसान है। तो जल तत्व बढ़ा है तो ये पल्सेशन बढ़ेगा, घटा है तो घटेगा। इसी तरह से अग्नि तत्व बढ़ा है तो पल्सेशन बढ़ेगा, अग्नि तत्व घटा है तो घटेगा। यहाँ पे देखिए मैंने थिंकिंग वेव्स बोला था, और देखो हमारे मन की गति जो है, मन यानी गतिमान है, यानी वायु, वायु से रिलेटेड कभी भी थिंकिंग आता है, इसलिए यहाँ बराबर वायु तत्व है। वायु तत्व के इम्बैलेंस से ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए थिंकिंग वाला पूरा प्रोसेस ये उंगली पर आता है। तो यहाँ पे अगर बढ़ा है तो ये बढ़ेगा, घटा है तो घटेगा। और ये एनर्जी यानी आकाश तत्व, यानी आकाश तत्व और एनर्जी से रिलेटेड क्या है, तो मेमोरी है। मेमोरी यानी स्मृति, यानी ब्रेन से रिलेटेड। जब भी किसी का स्मृति में कुछ प्रॉब्लम आता है तो समझ लेना कि उसका आकाश तत्व विकृत है और हमें उनका आकाश तत्व ठीक करना है। यानी मेमोरी रिलेटेड पेशेंट है अगर, यानी जैसे हम बोलते हैं अल्जाइमर डिसीज हो गया है किसी को, या कोई मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको हमको आकाश तत्व में लेना है। लेकिन इसी तरह से अगर पैरालिसिस हुआ है तो हमको वायु तत्व में लेना है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, ठीक है। तो आप तत्व के हिसाब से भी इसको डायग्नोस करके या तत्व का लेके भी आप ये डिसीज, मतलब इसमें डायग्नोसिस का आपका ये एक एक्स्ट्रा टूल आपको मिल जाता है। अब ये आपने इसी में आपने फट से वात पित्त कफ और थिंकिंग वेव्स और ये देख लिया, इसी में आपने पंच महाभूत भी देख लिए, 5 एलिमेंट्स भी देख। हाँ, इसी के बाद क्या आता है कि इसमें आप इंडोक्राइनल इम्बैलेंस भी जान सकते हैं, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कौन से ग्लैंड में इम्बैलेंस है वो भी आप इसी से जान सकते हैं। तो इसके लिए हमको सिर्फ हाथ का पिछला हिस्सा लेना है, बैक साइड। ये नेल का जो हिस्सा होता है, नेल का ये जो निचला हिस्सा है जहां नेल एंड होता है वहां पे हमको प्रेस करना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ प्रेस करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम है तो हमको यहाँ पे पल्सेशन दिखेगा, ये अंगूठा। एड्रिनल ग्लैंड शरीर के पृथ्वी तत्वों को दिखाती है, आपने देखा होगा स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स शरीर में भारीपन लाते हैं, डिस्टर्ब होता है तो, है ना, यानी पृथ्वी तत्वों को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड में अगर यहाँ पे पल्सेशन अगर ज्यादा लगता है, यहाँ कम ज्यादा का सवाल नहीं है, सिर्फ पल्सेशन लग रहा है तो ये ग्लैंड डिस्टर्ब है, मतलब यहाँ नॉर्मली पल्सेशन लगते नहीं है,
यानी नाखून के बेड के नीचे आप टच करके देखिए, नॉर्मली हमको पल्सेशन लगते नहीं है, लेकिन अगर इंडोक्राइनल बैलेंस कहीं खराब हुआ है तो हमको यहाँ पल्सेशन लगेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ जब हम प्रेस करेंगे तो इंडोक्राइन ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो यहाँ पल्सेशन लगेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ देखना है अगर इंडोक्राइन, उसके बाद यहाँ पे अगर पेशेंट के पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज यानी आप देखिए, मेरा इसके लिए तो इतना बड़ा डिस्कशन हुआ था सर, कम से कम IMA के 50 डॉक्टर्स के साथ मैंने आर्ग्यू किया था। उनका कहना था कि पेनक्रियाज जो है वो अग्नि तत्व की ग्लैंड है। एक्चुअली आयुर्वेदा के भी कुछ डॉक्टर्स थे उसमें, वो भी, और मैंने बोला था ये जल तत्व की है, और जल तत्व के इम्बैलेंस से डायबिटीज होता है, न कि अग्नि तत्व के इम्बैलेंस से। एक्चुअली डायबिटीज जो है वो जल तत्व के इम्बैलेंस का डिसीज है। मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देती हूँ, 1 ग्लास पानी में हम 1 चम्मच शक्कर मिलाए और आधा ग्लास पानी में 1 चम्मच शक्कर मिलाए, क्या हो रहा है, आधा ग्लास पानी में मीठापन ज्यादा आ रहा है। यानी पेनक्रियाज यानी डायबिटीज यानी आपका शरीर पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है जितना चाहिए, इसलिए आपका शुगर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, यानी पानी पीना उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। तो ये इसीलिए पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज के लिए यहाँ पे है कि पेनक्रियाज का इम्बैलेंस अगर है तो यहाँ पे आपको पल्सेशन लगेगा। उसके बाद आता है थायराइड का। तो अगर थायराइड में इम्बैलेंस है, थायराइड ग्लैंड में इम्बैलेंस है, तो आपको ये मिडल फिंगर जो है इसके बेस में आपको पल्सेशन लगेगा। और ये आप ना थायराइड वाले पेशेंट पे कीजिए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेडिसिन नहीं ले रहे, लेकिन यानी जिनका टैबलेट से बैलेंस है उनका आपको नहीं लगेगा, जिनका नॉर्मल है टैबलेट लेने के बाद। लेकिन अगर किसी का बढ़ा है तो उस कंडीशन में इसमें आपको पच से पल्सेशन आ जाएगा। तो अब ये जो है ये क्योंकि अग्नि तत्व का है, थायराइड ग्लैंड जो है मेटाबॉलिज्म यानी शरीर के डाइजेशन को मेंटेन करता है, इसीलिए हर जगह के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इसीलिए यह अग्नि तत्व की ग्लैंड है, इसीलिए थायराइड का पल्सेशन हमको यहाँ लगेगा। उसके बाद आता है सर, थायराइड ग्लैंड के बाद यहाँ पे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी इसीलिए मैंने बोला ये आपका वायु तत्व, यानी हमारे शरीर के सभी संचार यानी शरीर के सभी मोटिवेशन वायु से होते हैं, है ना, कहीं के भी कोई भी कार्य प्रणाली, और ये सभी पे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी हमारी ग्रोथ है या बाकी सब चीजें हैं, ये सबको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का इम्बैलेंस हो तो आपको यहाँ पे पल्सेशन लगेगा। और उसके बाद आता है पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी अगर किसी की हो तो उसका तो विवेक ही चला जाएगा, यानी मतलब पूरा उसका थॉट खुद पे जो इम्पैक्ट है वो चला जाता है, खुद का कंट्रोल चला जाता है। तो ये पिनियल ग्लैंड जो है इसका पल्सेशन यहाँ पे आता है। जनरली हमें पिनियल ग्लैंड वाले पेशेंट तो बहुत कम मिलते हैं, या हम कोमेटोस पेशेंट जो है सर, अगर हम उनको देखें क्योंकि उनका भी पिनियल कंट्रोल चला जा चुका है, तो उनके लिए हम यहाँ पे पल्सेशन चेक कर सकते हैं, तो हमको उनका यहाँ पल्सेशन लगेगा। आपको जब भी कभी ऐसे पेशेंट से आप ओवरकम होंगे तो कीजिए, तो आपको वो अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये हो गया सर कि आपने इस तरह से नाड़ी परीक्षण किस तरह से करना है। तो उसके बाद एक और टूल है, वो है प्लानिटरी नाड़ी एग्जामिनेशन। अभी 10 मिनट्स का पार्ट ही रह चुका है, अगर हम करते हैं तो करें ना कंटिन्यू। यस यस हाँ यस मैम कंटिन्यू। हाँ हाँ, वैसे इसका और जो डीपर पार्ट है वो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अभी मैं 10 मिनट्स का एक बता रही हूँ। अभी है प्लानिटरी। तो हम प्लानिटरी में हमारे माइंड में आता है वो ब्रह्मांड में जो घूमने वाले ग्रह है वो सबसे पहले। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए भी मेरा मतलब मैंने इसमें मतलब मेरा तो ऑर्गन में बहुतों ने मुझे क्रॉस ही किया है, लेकिन फिर भी मैं ये सब चीजें एलेबरेट करती हूँ और फिर उनको बताती हूँ। अब प्लैनेट्स यानी क्या, तो हमारे माइंड में आता है कि प्लैनेट्स यानी बाहर ब्रह्मांड में जो घूम रहे हैं, जुपिटर ये वो सब, गुरु वगैरह सब, वो नहीं, वैसा नहीं है। बाहर जो ब्रह्मांड में प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो अर्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमें अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लैनेट्स यानी क्या, तो प्लैनेट्स हमारा प्लैनेटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनता है, लेकिन फिर अर्थ के साथ हमारा प्लैनेटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बन रहा है, तो इसका एक रीजन है। हम जब हमारा बर्थ होने का रहता है तब हम माँ के पेट में रहते हैं, माँ के वूम में रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब तक बच्चा माँ के पेट में है तो उसकी डेस्टिनी किसके साथ जुड़ी है, माँ के साथ, क्योंकि बच्चा पेट से बाहर आने तक अगर माँ मर जाती है तो बच्चा मर जाता है, इतना तो पक्का है। यानी उसकी तब तक की डेस्टिनी किसके साथ जुड़ी है, तो पूरी उसके मदर के साथ। लेकिन जैसे ही हम बर्थ लेते हैं, यानी बाहर अर्थ के बाजू में जो घूम रहे मैग्नेट, वो उनके घूमने की वजह से अर्थ के मैग्नेट पे एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं, यानी एक फोर्स का इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन जैसे हम माँ के पेट से बाहर आते हैं, यानी हम जब माँ के पेट में, हमारी डेस्टिनी नहीं बनी है, हमारा ऑरा नहीं बना है, क्योंकि हम तब तक थिंकिंग में भी नहीं है, हमारा थिंकिंग स्ट्रक्चर भी कुछ भी नहीं बना है, हमें तब तक कुछ फीलिंग नहीं है, यानी पेन का फीलिंग नहीं है। लेकिन जब हम बाहरी परिवेश के संपर्क में आते हैं उस टाइम पे तुरंत हमारा ऑरा फॉर्म होता है, यानी जब बच्चा बाहर आता है
उसका जो खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो फॉर्म होता है। और वो ऑरा फॉर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे उसका ऑरा फॉर्म होता है उस टाइम पे उसके ऑरा में जो जो प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं, यानी उस वक्त का बाहर का अर्थ का उस दिन का जो भी एटमॉस्फेयर रहता है उस तरह से उसके ऑरा में प्रेशर पॉइंट्स बन रहे हैं। और वो प्रेशर पॉइंट्स यानी उसका हम प्लानिटरी बोल सकते हैं, यानी ये प्रेशर पॉइंट्स जो बन रहे हैं ये उसका प्लानिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। और पुराने समय में नाड़ी ज्योतिष यही करता था कि बर्थ के टाइम पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेता था कि इसके बर्थ के टाइम पे उसका ऑरा किस तरह से फॉर्म हुआ है, और फिर उससे वो बताता था कि ये बच्चे में कौन से इसके वीक पॉइंट है और कौन से प्लस पॉइंट्स है। क्योंकि नाड़ी शब्द जो आता है, अब हम आते हैं कि नाड़ी शब्द मूलतः कहाँ से आता है। ये भी मेरा इनोवेटिव थॉट है और ये यही ट्रूथ है जो गुरु शिष्य हमारे आयुर्वेदा में बोलते हैं ना, गुरु प्रमाण यानी सत्य प्रमाण। तो मुझे तो लगता है कि गुरु प्रमाण को भी उन्होंने कहा है कि सत्य प्रमाण मानिए। गुरु प्रमाण यानी ये नहीं कि हमसे बड़े वाले किसी ने व्यक्ति ने कहा और हो गया। गुरु प्रमाण यानी वो प्रमाण जो थॉट लेवल, जो प्रमाणित गुरु यानी जिसने प्रमाणित करके थॉट लेवल पे बोल दिया है कि नहीं मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा होता है, तो उसको हमको सत्य प्रमाण मानना है। तो अब नाड़ी शब्द क्यों आया है, तो नाड़ी हम इसको नाड़ी बोलते हैं कि आयुर्वेदा में नहीं, हम इसको धमनी बोलते हैं। तो नाड़ी शब्द क्यों आया, तो नाड़ी यानी गर्भनाभि नाड़ी, यानी बच्चा जब माँ के पेट में गर्भ से जुड़ता है तो वो जो नाड़ी है तो वो गर्भनाभि नाड़ी से किसी को जानना, यानी उसके जन्म से उसका पूरा एग्जामिनेशन करना, यानी नाड़ी परीक्षण, यानी उसका बर्थ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वहां से जान के उसका एग्जामिन करो। यानी नाड़ी शब्द वहां से आया है, गर्भनाभि नाड़ी, यानी उस नाड़ी से उसको जानो, उसके जन्म से उसको जानो। अन्यथा नाड़ी परीक्षण अधूरा है। अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ये हम पकड़ के कर रहे थे ये अधूरा है, क्योंकि हम नाड़ी नहीं, हम धमनी परीक्षण कर रहे हैं, हम यहाँ पे नाड़ी परीक्षण नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसके बर्थ से उसको पूरा जान रहे हैं तो वो नाड़ी परीक्षण है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब वो बच्चा जन्म लेता है, ऑरा फॉर्म हो रहा है, तो उस टाइम के जो प्रेशर पॉइंट्स उसके ऑरा में बन चुके हैं वो फैटल रहेंगे हमेशा के लिए, और वो प्रेशर पॉइंट्स पर उसको लाइफ भर उसको अफेक्ट करते रहते हैं, और इसीलिए वो जन्म कुंडली वगैरह जो थी वो बनती थी। यानी वो साइंटिफिक है, सिर्फ आज के परिवेश में लोग उसको साइंटिफिक कह नहीं पा रहे हैं। तो ये जो हाथ का है इसमें प्लानिटरी में आप नाड़ी परीक्षण भी कर सकते हो, मतलब प्लैनेट्स भी पता कर सकते हो। तो आप हमें डॉक्टर्स हो के प्लैनेट्स का क्यों पता करना है, तो मैं आपको पहली चीज बता दूं, जब गुरु अगर किसी का गुरु वीक है तो उसको पित्त से रिलेटेड डिसीजेस बहुत होंगे, ठीक है। गुरु अगर किसी का वीक है तो उसका विल वीक रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मतलब गुरु किसी का शनि वीक है तो उसके एक्सीडेंटल योग ज्यादा रहेंगे, यानी अगर हमको उसको अचेत करना है फिर कि तुम तुम्हारी चंचलता कम करो, इस तरह से अगर शनि है तो एक्सीडेंटल है, शनि है तो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर बुध है तो बुध है तो किसी को भी मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, अगर किसी का बुध वीक है तो। किसी का शुक्र वीक है तो शुक्र वीक है तो उनको इनफर्टिलिटी है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आता है, यानी उनके जो मतलब सेक्सुअल लाइफ है उनमें प्रॉब्लम्स रहेंगे, बेबी होने में उनको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये शुक्र का इफेक्ट होता है। यानी हमें क्या करना है, हमने सिर्फ गलत कहा हुआ है कि वो जो नॉलेज था वो डॉक्टर्स के हाथ में नहीं था, तो हम उसको मेडिकली इसको पहले कोरिलेट नहीं कर पाए, ना उसको मेडिकली उसको यूज कर पाए। नहीं तो हमें प्लानिटरी नाड़ी परीक्षण इसीलिए पता चाहिए, यानी इसमें हम अगर आगे के कभी सेशंस लेते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें हम इसके आगे डीप जा सकते हैं, यानी सूक्ष्म नाड़ी एग्जामिनेशन किस तरह से करना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाला किस तरह से करना। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप जेनेटिक अल्ट्रासेटल वाला अगर आप करते हैं नाड़ी एग्जामिनेशन, मैं आपको मतलब आपको सिर्फ ये चीज अभी अचंभित करेगी, लेकिन मेरी भाभी मुझे वहां से बोलती है कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं उसको यहाँ से बताती हूँ कि क्यों हो रहा है। मतलब जो अगर आप सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाड़ी परीक्षण सीखते हैं तो थिंकिंग वेव्स, मुझे बताइए हम यहाँ बैठे हैं, हम अभी अगर हम आप जैसे आप आपके घर के अगर आप आपके घर से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपके घर की कोई थोड़ी सी याद आ गई तो आप अपने घर में तुरंत पहुंचते हो, यानी थॉट से आप आपके घर में कितनी जल्दी पहुंच रहे हो, यानी थॉट की गति लाइट की गति से भी ज्यादा है। थॉट जो है, थॉट की गति ऐसा कहा जाता है कि लाइट की गति से ज्यादा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंटरनल भी लाइट है, हमारी आंखें पिक्चर्स ले रही है, इसका मतलब क्या है, हम कैमरा से पिक्चर लेते हैं मोबाइल से कैमरा से, तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है और लाइट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और पिक्चर ले रहा है। तो हमारी आंखें पिक्चर्स ले रही है, यानी हमारे अंदर भी एनर्जी भी है और हमारे अंदर लाइट भी है। तो ये लाइट को हम जब हमारे मन की गति के साथ कहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, हमको वहां का पिक्चर विजुअलाइज होगा, समझ रहे आप।
लाइट से अगर हम मन की गति को वहां ले जाएंगे तो वहां का विजुअलाइज होके हम वहां का डायग्नोसिस फिर से हमारे पास आएगा। अभी आप यहाँ बैठे हो, आप मन से सोचेंगे कि मैं फॉरेन जाके, आप जहाँ फॉरेन जाके आए हैं, आप अभी फिर से सोचोगे तो आप मन से फट से वहां पहुंच जा रहे हो, फिर से वहां से वापस आ रहे हो। यानी मनसो गति हमारे इसमें है ना, मतलब हमारे इसमें ये कहा गया है कि हर काम किस चीज से होता है। प्राणापानो निमेषाध्याय जीवना मनसोगति इंद्रियांतर संचारा प्रेरणम धारणम चेत, यानी हर काम कौन करता है, तो मन की गति से हर काम होता है। तो यानी ये जो हमारा मन है, मन को अगर हम कहीं ले जाते हैं तो हमको डायग्नोसिस में वो सबसे बड़ा टूल रहता है। तो इसीलिए हमें प्लानिटरी नाड़ी एग्जामिनेशन भी हमारे लिए जरूरी है कि हम वो रुग्ण का, उसके आगे उसमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्रह बाधा तो नहीं है, वो भी हम उनकी देख ले। तो ग्रह बाधा यानी क्या, तो उसका ऑरा डिस्टर्ब हुआ है उस टाइम पे, पहली बात। यानी ग्रह बाधा यानी कोई, ये जो भूत प्रेत बोलते हैं वो शब्द हमको यूज नहीं करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, पुराने समय में उन्होंने टर्मिनोलॉजी वो दी थी, संस्कार, संस्कार शब्द आया था। संस्कार शब्द यानी क्या, हमको क्या लगता है संस्कार यानी हम बच्चे में जो संस्कार कर रहे हैं वो हम ऊपर से संस्कारित कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो संस्कार आ रहे हैं मतलब क्या, तो हमारे साथ जेनेटिक मेमोरीज आ रही है। हम कुछ तो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन साथ में हमारे सेल्स के अंदर लेके आए हैं। हमारे सेल्स के अंदर भी एक मेमोरी है, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर है। तो हम पहले एक सेल बनी हमारी, है ना, माँ बाप से, माता पिता से जाइगोट में एक सेल बनी, तो वो सेल में वो मेमोरी प्रेजेंट है। आज बोलते हैं ना स्टेम सेल थेरेपी, आपने सुना होगा स्टेम सेल थेरेपी। क्यों है स्टेम सेल में इतना पावर, क्यों है, क्योंकि हमारे स्टेम सेल में हमारे बनने से लेके पूरी मेमोरीज है। ठीक है, मतलब आपको, आपने देखा होगा कि आपने पिताजी ने अगर घर बनाया है आपके पहले, तो आपको वो घर याद है क्या कैसे बना, नहीं, क्योंकि आपने देखा नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई घर बनाया है तो उसकी पूरी मेमोरीज आपके अंदर है। इसी तरह से आपके एक सेल से अगर आप फॉर्म हुए हैं तो आपके वो सेल में आपकी पूरी मेमोरीज है, क्योंकि वो आपके पहले फॉर्म हुआ है। जो आपके पहले फॉर्म हुआ है उसको आपके आगे का पूरा पता है। तो इस तरह से प्लानिटरी को हमको समझना पड़ेगा, साइंटिफिकली समझना पड़ेगा, और ये चीज को भी हमको देखना पड़ेगा। तो प्लानिटरी के लिए कुछ भी नहीं रहता है, ये जो इसको टच करना है। लेकिन तो ये मैं प्लानिटरी के ना आपको पूरे स्लाइड्स भेज दूंगी, तो आप वो पॉइंट्स फिर से देख लीजिएगा। मैं क्या करूंगी सर, स्लाइड्स आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, तो उसमें प्लानिटरी के अगर पूरे लिखे हैं आपको स्टडी कर लीजिएगा। तो जो जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट रफ लगता है तो समझना कि वो प्लानेट डिस्टर्ब है। तो इस तरह से हम प्लानिटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद अब ये बस छोटा सा 3 मिनट का पोर्शन बचा है, ले लो 2-3 मिनट का। ये स्पेसिफिक नाड़ी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नाड़ी एग्जामिनेशन में क्या है, जैसे कुछ स्पेसिफिक डिसीज है जिसका नाड़ी डायग्नोसिस हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एनीमिया है, अगर एनीमिया है तो हमको नाड़ी बहुत डीप लगेगी और पतली लगेगी, ठीक है। एनीमिया अगर रुग्ण को है तो हमको नाड़ी डीप लगेगी और नाड़ी पतली लगेगी, थीन लगेगी, यानी धागे जैसे। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। और दूसरी चीज अस्थमा, अगर किसी को अस्थमा है तो अस्थमा में भी हमको नाड़ी डीप लगती है लेकिन थोड़ी रस्सी जैसी कठोर लगती है। यानी अगर एनीमिया है तो नाड़ी दो, एनीमिया और अस्थमा दोनों में डीप लगेगी, यानी थोड़ा हमको प्रेस ज्यादा करना पड़ेगा नॉर्मल से, ठीक है। तो एनीमिया और इसमें, लेकिन अगर उसका एनीमिया है तो नाड़ी थीन लगेगी, यानी नरम धागे जैसे लगेगी। लेकिन अगर उसमें अस्थमा है तो उसमें हार्डनेस आएगा, ये हमको जानना है। दूसरा, अगर कार्डियक इश्यूज है तो किसी को, हमको नाड़ी पानी भरे जैसी जो चमड़ी की थैली रहती है वैसे लगती है। अगर रुग्णों को जैसे, अगर मतलब जैसे कार्डियक इशू है, कार्डियक ब्लॉकेज वगैरह, आवाज आ रही है ना सर? यस आवाज आ रही है ना मैम? ऑडिबल है। अगर कार्डियक इशू है तो पानी भरे जैसा, पानी भरे जैसे चमड़े के थैली जैसा हमको वो नाड़ी लगेगी। यानी हम नाड़ी ऐसे हाथ रखेंगे ना तो हमको नीचे ऐसा पानी के थैली जैसा लगेगा। हमको ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स हमको फील करने पड़ेंगे। एजोस्पर्मिया का पेशेंट है, एजोस्पर्मिया के पेशेंट की नाड़ी आप देखिएगा सर, एकदम से समझ में आती है। ऐसा लगता है कि हॉलो पाइप में से हवा जा रही है, मतलब यहाँ पे आपको नाड़ी में खालीपन लगेगा, और खाली पाइप में से हवा जाते वक्त कैसे आवाज आता है वैसे लगेगी आपको एजोस्पर्मिया के पेशेंट में। अगर जिनमें मतलब जीरो शुक्राणु है, जीरो स्पर्म्स वाला पेशेंट है, तो स्पर्म वाले पेशेंट में आपको नाड़ी वैसे लगेगी। अगर वर्म्स और किडनी स्टोन, यानी अगर पेशेंट को स्टोन है तो किडनी हो या फिर गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, दोनों कैलकुला है। और अगर वर्म्स है तो दोनों में भी नाड़ी पट्टी जैसी लगती है, मतलब ये तीनों उंगलियों के नीचे ऐसे लगेगा कि एक पट्टी ऐसे 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 लग रही है। यानी एक ये उंगलियां है, इसके नीचे एक स्लेट जैसी अपनी स्लेट रहती है ना, स्लेट जैसा कुछ तो भी टच हो रहा है। लेकिन जैसे
अगर उसको वर्म्स है तो वर्म्स में वो नाड़ी जो रहेगी वो बहुत ठंडी लगेगी, लेकिन यानी वर्म्स वाले बच्चे को या वर्म्स वाले रुग्णों का आप हाथ लगाओगे तो उसका हाथ ही आपको एकदम ठंडा लगेगा। लेकिन अगर कैलकुलस है तो उसमें उष्णता लगेगी, आपको नाड़ी गर्म लगेगी और साथ में वो पट्टी जैसे लगेगी। तो ये डायग्नोसिस बहुत मेन रहता है, मतलब आप इससे कैलकुलस बिल्कुल बेधड़क इससे आप डायग्नोस कर सकते हो। तो कैलकुलस वाला जो पेशेंट है उनमें आप देखिएगा कि वो नाड़ी आपको उसकी जैसी लगेगी। उसके बाद अगर फाइब्राइड है तो जैसे गायनिक में पेशेंट आते हैं कुछ कुछ फाइब्राइड्स वाले, या शरीर में और कहीं गठान हो या फिर फाइब्राइड्स मेन हो, तो उसमें नाड़ी बिल्कुल ग्रंथिवती लगेगी, यानी ऐसे लगेगा कि अंदर कुछ तो भी गोल गोल गठाने जैसा उंगली के नीचे ऐसे ट्रेवल हो रहा है, गोल गोल गठाने। ठीक है, तो ये आपको ग्रंथिवत नाड़ी लगेगी, यानी बीच बीच में ऐसे एक जगह ग्रंथि लगेगी, फिर इधर लगेगी, फिर इधर लगेगी, इस तरह से। उसके बाद ये नाड़ी हो गई। उसके बाद अगर मतलब जैसे रुग्ण को अगर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन की नाड़ी तो आप बिल्कुल इजीली फट से पहचान सकते हैं। कभी आपके पास पेशेंट आए और अगर वो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की नाड़ी आपको हाथ के नीचे एकदम लड्डू जैसे लगेगी, गोल गोल लड्डू जैसे सरकता है ना, हाथ पे लड्डू सरका के देखना। एक्चुअली देखिए, हमें हमारे फीलिंग को बढ़ाना पड़ेगा, जितना माइनर आपका फीलिंग रहेगा आप उतने ट्रेन नाड़ी परीक्षण करेंगे, बाकी उसमें कुछ भी नहीं। और ये फीलिंग्स को ना बताना बहुत हार्ड काम है, मतलब मुझे उसमें बहुत ज्यादा ये करना पड़ा क्योंकि ये बहुत हार्ड टास्क है, ये आसान टास्क नहीं है। तो जैसे जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो नाड़ी गोल लड्डू आप हाथ पे घुमा के देखिए तो आपका आइडिया आ जाएगा। तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि उंगली के नीचे एक लड्डू ही घूम रहा है। तो ये कॉन्स्टिपेशन की नाड़ी होती है, कॉन्स्टिपेशन की नाड़ी में आपको वैसा लगेगा। लेकिन इसके साथ ही जैसे मतलब एक और है, जैसे मतलब कैंसर की नाड़ी हम बोलते हैं, कैंसर, जैसे कैंसर वाला अगर पेशेंट है तो कैंसर की नाड़ी में आपको क्या लगेगा। तो कैंसर की नाड़ी में जैसे आप ये उंगली रख रहे हो तो इसमें आपकी जो आखिरी उंगली रहेगी, यहाँ लास्ट वाली जो उंगली रहेगी उसके नीचे ही आपको बिल्कुल गोल ग्रंथि वक्त ऐसे ग्रंथि जैसे ऐसे ऐसे लगते रहेगा। तो समझना कि इनमें कैंसर है, लेकिन ये कैंसर वाले पेशेंट की नाड़ी रहेगी, मतलब ये लास्ट में लगेगा, लेकिन इनमें शुरू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ लास्ट उंगली रहेगी उसमें आपको ग्रंथिवत लगेगा। इसके बाद हमको सबसे मेन एक नाड़ी डायग्नोसिस है जो मुझे लगता है मेरे 21 साल की प्रैक्टिस में टचवुड एक ईश्वर की कृपा बोलेंगे कि अब तक मैंने बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट लिए, सब कुछ हैंडल किया, लेकिन एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट की नाड़ी कैसे पहचानना, बस हमको ये बहुत जरूरी होता है। जब हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है तो कौन सा पेशेंट क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल पेशेंट की नाड़ी की सबसे पहली बात रखना, आयुर्वेदा में भी ये शब्द दिया है कि नाड़ी अपनी जगह से च्युत हुई रहती है। च्युत होना यानी अपनी जगह से हट जाना, यानी ये जो नाड़ी की जगह है आपको यहाँ नाड़ी लगेगी ही नहीं। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल समझना कि ये पेशेंट कुछ देर में फिर जाने ही वाला है, ये मैंने वो पल्मोनोलॉजिस्ट है हमारे यहाँ के, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह, उनको मैंने नाड़ी बताई है क्योंकि, और उन्होंने उसको किया भी है और वो वही कहते हैं मैडम बहुत इफेक्टिव है हमारे लिए भी समझने के लिए। क्योंकि ये जो आपने जहां हम उंगलियां रखते हैं वहां से आपको 2 उंगली और आगे लगेगी ये नाड़ी, मतलब ये आपको यहाँ पे लगेगी, यानी एक मिनट, ये हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पोर्शन है ये छोड़ के नीचे लगेगी, यानी हमको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो अगर हमको कभी भी ऐसा लगता है कि हमको वहां से हटना पड़ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि ये पेशेंट क्रिटिकल है या फिर किसी भी इमरजेंसी में जाने वाला है। लेकिन ये नाड़ी हमको एक सबसे मेन टूल है जो हमको याद रखना है, ये क्रिटिकल पेशेंट की जो नाड़ी है वो। तो इस तरह से ये अपना एक ओवरऑल तो सेशन हो चुका है। आपको कुछ क्वेश्चन है अभी के सेशन पे तो वो आप पूछ सकते हैं मुझे। हाँ मैडम, मुझे कुछ पूछना था। आपने ये सब बताया तो बिल्कुल जो बुक्स में लिखा हुआ है उससे बिल्कुल अलग है, उससे इतर है। जैसे हमने पढ़ा बिल्कुल कि अलग है। वायु की जो नाड़ी होती है वो सर्प की गति के अनुसार होती है, पित्त की नाड़ी होती है वो मेढक की गति के अनुसार होती है, कफ की जो नाड़ी होती है वो हंस के गति के अनुसार होती है। तो हम तो अभी तक इसी के चक्कर में पड़े रहे, तो ना मुझे कभी वायु उसकी सर्प की गति महसूस हुई, ना मेढक की और ना हंस की। नहीं सर, इसीलिए वो मतलब मैं सही में बता रही, दैट्स नॉट द परफेक्ट, वो परफेक्ट नॉलेज है ही नहीं। मुझे क्या लग रहा है वो सिर्फ प्रकृति के लिए ठीक है जानने के लिए वहां तक। तो उस मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हमने जो बुक्स में पढ़ा ना वो 1% भी नाड़ी का नॉलेज नहीं है। नहीं तो नाड़ी आयुर्वेदा का मेन टूल है सर, ये बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन उसको फेल कर देगा। मतलब आपको यकीन नहीं आएगा, मतलब मेरे मतलब मैं कुछ पेशेंट्स का आपको बता सकती हूँ, मैं ट्यूब बायलैटरल ट्यूब ब्लॉक, मैं इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करती हूँ सर, तो मैं 1 ट्यूब ब्लॉक और 2 ट्यूब ब्लॉक ये भी नाड़ी से बताती हूँ। जी जी।
मतलब एक बंदे की दो बंदे। दूसरा, आप अगर ये प्लानिटरी या ये अल्ट्रा सैटल नाड़ी एग्जामिनेशन अगर आप कहते हैं तो हम इसका आगे जाके सेशंस ले सकते हैं। मुझे कुछ नहीं, मुझे तो बिल्कुल सिखाना, ये तो सिखाना ही है। सिखाना सर इसलिए है कि नॉलेज लैप्स नहीं होना चाहिए सर, और दूसरे के हाथ में भी नहीं नहीं, जाना बिल्कुल चाहिए ताकि वो उसका गलत उपयोग करे। आपके लेक्चर्स हम तो कंटिन्यू हाँ, करेंगे। और ये आपने बड़ा ही इंफॉर्मेटिव आज नॉलेज दी है हमें, और निश्चित रूप से इसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो हम इसको हाँ, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अभी जैसा कि आपने बताया कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग पांच भौतिक हैं। ये सारी सृष्टि जो है पांच बिल्कुल भौतिक है: बिल्कुल, हाँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और इनके अपने अपने विषय होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस बिल्कुल और गंध। गंदा, मैंने हाँ बिल्कुल कभी लिखा था कि निश्चित रूप से जब हम इसके बने हुए हैं, जब हमारा निर्माण इन पंच महाभूतों से हुआ है, तो इसके जो गुण हाँ हैं: हाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो जिसमें जितने ज्यादा गुण होंगे उस व्यक्ति के अंदर भी वैसे ही गुणों का बिल्कुल समावेश हो बिल्कुल जाएगा। सही है सर। मैंने कभी लिखा था कि शब्द स्पर्श से महकाएंगे, शब्द अच्छा स्पर्श से महकाएंगे, रूप रस गंध झिल मिलाएंगे, हम उपासक हैं महाभूतों के। मैंने पढ़ा था सर आपने ये। आपने जो दर्शन प्रस्तुत किया है, बिल्कुल निश्चित रूप से दर्शन जो है ये श्लाघनीय है। इसको अगर व्यक्ति ने समझ लिया, इसके मर्म को समझ लिया, तो उसकी प्रैक्टिस और उसकी जो डायग्नोसिस है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बिल्कुल शब्द स्पर्श से महकाएंगे, रूप रस गंध झिल मिलाएंगे, हम उपासक हैं महाभूतों के, हम में गुण भी उन्हीं के आएंगे। बिल्कुल। तो मैंने सब ऐसा पढ़ा आपका ये ऐसा हमें फेसबुक पे। विश्वास है आपके आपके बहुत सेशन हम बढ़िया और था। कंटिन्यू करेंगे। हाँ डॉक्टर मीनाक्षी। Thank you so much, ma'am. कुछ क्वेश्चन है? Because of network issue, हाँ, मैं भी exit हो गई थी. So ओ it was या हाँ it was very informative presentation on Nadi science. इतना practically बताना. हम चाहेंगे कि we would like to call you Bareilly for a practical presentation of this Nadi science to बरेली, learn more ओके, about श्योर बरेली मैम, में श्योर श्योर because श्योर it's श्योर श्योर। बिल्कुल यहाँ भी बरेली ना में। मैम आज nice बहुत session. बारिश हुई। हाँ, यहाँ बारिश बहुत हुई थी, तो यहाँ भी थोड़े नेटवर्क इश्यूज बहुत हो रहे हैं आज। अभी हवा भी बहुत चल रही है, मैं इसलिए बाहर